guys, this is Shikha. Welcome to Sharetastic. So in today's video हम पढ़ेंगे NCERT Honeysuckle क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है तारोज रिवॉर्ड। पहले हम इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मुझे आगे भी ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। Guys, the main character of the story is Taro. Taro was a young woodcutter who used to cut wood in the forest for his living. Now, Taro used to live with his father and his mother in a small and cracked hut. One day, strong wind blew outside their hut and all three of them felt very cold, especially Taro's father, who was very old and weak and was not able to cope up the hardships of the wind. So Taro's father wished that time to have a cup of sake. Sake is a Japanese drink. This story is basically a Japanese folktale. So Taro and his father and all the characters are Japanese only. So the weather depicted in the story is cold. When Taro's father felt cold because of the strong wind that was blowing outside their hut and was entering due to the cracks in the hut, Taro's father wished for a cup of sake. But Taro was not capable enough to provide his father that sake because he didn't earn much. The quantity of the wood that he used to cut was very less and the villagers don't pay that much to Taro that he can buy an expensive sake for his father. When Taro's father wished for the cup of sake, Taro became very sad. He thought that what if he had earned more so that he could provide his father with that cup of sake. So next morning he woke up early and went to the forest to cut more wood so that he could provide his father with a cup of sake by selling those woods. Now what happened, as the days climbed and the sun started shining in the forest, Taro felt very warm and very thirsty. He put out his jacket which he was wearing and kept it aside. Now after some time, as he was chopping woods, he heard a strange sound. He didn't heard that sound before, so he dropped his axe and went in the direction of the sound. Now what he saw there, he saw a beautiful fountain beside a rock. He thought of drinking that water which was coming from the fountain so that he could quench his thirst. Now when he went to the fountain to quench his thirst, he cupped his hands so that he could drink the water. But when he tasted that water, the water was not the simple water like we drink the natural water and all. The water was sake, the expensive sake, the warm sake which his father just wished a day before. Taro felt very happy after finding the sake. So he used to carry a pitcher with him. He filled that pitcher with that sake and went home hurriedly. Now when he reached home, he gave his father that sake. His father became very happy and he started dancing in the middle of the floor because the sake provided warmth to his whole body and he felt some relax. Now after some time, a lady villager from their neighborhood came to their house. Taro's father politely offered that lady that cup of sake. Now when the lady drank that sake, she became very delighted and asked Taro's father where did they brought the sake from. So Taro's father was a very humble and a simple man. He told the lady villager all the story that Taro had brought the magic sake from the magical fountain and this and that. The lady left their hut hurriedly so that she could tell the whole village about the magical sake. When she reached the village, she told the entire village about the sake. And when next morning, when Taro went to the magical fountain to fetch some more sake, what he saw there, he saw that the entire village was there to collect the sake. Taro hid behind a rock so that the villagers was not able to see him. And what he saw there, that one by one the villagers was going towards a stream to fetch their pitcher with water, but what they was getting there was only cold water. There was no magical sake in the fountain. The magical sake was giving only cold water to the villagers. Now the villagers became very angry and they started quarreling about each other and they were saying that we will kill Taro and bring Taro here, he is a liar, he told us lie and all that stuff. Taro was continuously hiding behind the rock. Now
When all the villagers angrily left the place one by one, Taro came out of his hiding place and he went straight towards the magical fountain. When Taro cupped his hands to drink the water from the magical fountain, he tasted the sake again. Now, what happened actually is the magical fountain gave sake only to Taro because he was an obedient son who used to think a lot about his family, but not to the villagers who were very greedy and they did not respect their parents at all. This folk tale, this Japanese folk tale became so popular that the emperor of Japan, the king of Japan, heard about this story and he called Taro to his palace. He rewarded Taro for his obedience, for his love, for his care towards his parents, and he named the most beautiful fountain of the city in name of Taro. Now the most beautiful fountain in Japan was named after Taro. The name of the fountain was now Taro's River. सो गाइज आई होप आपको ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द हिंदी एक्सप्लेनेशन सो दैट हम वर्ड बाय वर्ड चैप्टर की हिंदी पढ़ सकें और उसको अच्छी तरह से समझ सकें. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तारोज रिवॉर्ड, तारो का इनाम. तारो को क्या इनाम मिलता है? लेट्स रीड. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान लकड़हारा जिसका नाम तारो था वो अपनी मदर और फादर के साथ एक लोनली हिल साइड पे रहता था. लोनली हिल साइड मतलब पहाड़ी के पास एक अकेली जगह पर रहता था अपने फादर और मदर के साथ. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट. पूरा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता रहता था. चॉप मीन्स लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करता रहता था. दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. हालांकि वो बहुत मेहनत करता था लेकिन वो बहुत कम पैसे कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. ये सुनकर तारो उदास हो जाता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचता है और उनको उनके आराम की हर चीज़ प्रोवाइड कराना चाहता है. उनको वो सब देना चाहता है जो उनको नीडेड है. वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. एक शाम जब तारो और उसके पेरेंट्स अपनी झोपड़ी में एक कोने में बैठे हुए थे, बहुत तेज़ हवा चलने लगती है. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. झोपड़ी की दरारों में से वो हवा अंदर आ जाती है और सभी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." तभी तारो के फादर कहते हैं कितना अच्छा होता कि मुझे एक कप सेक मिल जाता, एक कप गरम काढ़ा मिल जाता जिससे मुझे गर्मी पहुंचती और मेरे बूढ़े दिल को भी आराम पहुंचता. दिस मेड तारो sadder than ever for the heart warming drink called sake was very expensive. इस बात से तारो पहले से भी ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि दिल को गर्मी पहुंचाने वाली वो जो ड्रिंक थी जिसका नाम सेक था वो बहुत ज़्यादा महंगी थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क्ड हिमसेल्फ. वो खुद से बोलता है मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. वो सोचता है कि मैं अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए जरा सा सेक कैसे लाऊं और वो ये भी डिसाइड करता है कि अब वो पहले से भी ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा पैसे कमाने के लिए. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. अगली सुबह तारो अपने बेड से रोज़ से भी पहले उठ जाता है. जितने बजे वो रोज़ उठता था उससे बहुत पहले उठ जाता है और जंगल की तरफ चला जाता है. ही chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. वो लकड़ियाँ काटता है और छीलता है, काटता है और छीलता है और जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगता है, सूरज निकलने लगता है, वैसे वैसे उसको इतनी गर्मी लगती है कि इतनी ठंड के मौसम में भी उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ती है. His mouth was dry and his face was wet with sweat.
उसका मुंह जो है वो सूख जाता है और उसका जो चेहरा था उस पर पसीना आने लगता है। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। वो सोचता है मेरे गरीब बूढ़े पिता, कितना अच्छा होता अगर उन्हें भी इतनी गर्मी प्राप्त होती जितनी इस समय मुझे हो रही है। एंड विद डैट he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bone। और इसी के साथ ही वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से लकड़ियाँ काटने लगता है। उसकी थिंकिंग में, उसकी थॉट में वो एक्स्ट्रा मनी चल रही होती है जो उसे अब किसी भी हालत में कमानी पड़ेगी, जिससे वो अपने बूढ़े फादर की बोन्स को गर्मी पहुंचा सके सेक के थ्रू। उसे अब इतना पैसा कमाना था जिससे वो अपने बूढ़े फादर के लिए सेक खरीद सके, सेक ला सके। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। तभी अचानक से तारो लकड़ियाँ काटना बंद कर देता है। What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? वो सोचता है कि उसने कैसी आवाज़ सुनी है, क्या ये किसी बहते पानी की आवाज़ है? तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। तारो को याद नहीं आता कि उसने फॉरेस्ट के उस पार्ट में कभी भी किसी बहते या चलते हुए झरने के बारे में सुना हो। He was thirsty, वो बहुत प्यासा था। The eggs dropped out of his hands and he ran in the directions of the sound। कुल्हाड़ी उसके हाथों से गिर जाती है और वो उस तरफ भाग चलता है जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही होती है। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock। तारो एक छोटी चट्टान के पीछे एक सुंदर झरना देखता है। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips। जहाँ पानी थोड़ा शांत था वहाँ तारो घुटने के बल बैठकर थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लेकर अपने होठों से लगाता है। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक? क्या वो पानी था या क्या वो सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। वो बार बार उसको टेस्ट करता है और हर बार वो ठंडे पानी के बजाय डिलीशियस सेक, स्वादिष्ट सेक ही निकलता है। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। तारो जल्दी से एक घड़ा भरता है, एक बर्तन भरता है जो उसके पास होता है और घर की तरफ चल पड़ता है। जब तारो को सेक मिल जाता है तो वो बहुत तेज़ी से जो उसके पास बर्तन होता है उसमें सेक भर लेता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। बूढ़े आदमी को वो सेक बहुत डिलाइट देता है, बहुत खुशी देता है। बूढ़ा आदमी उस सेक को पीकर बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करता है। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। लिक्विड का केवल एक घूंट लेने के बाद वो कपकपाना बंद कर देता है और फ्लोर के मिडिल में आके थोड़ा सा डांस भी करता है। क्यों? क्योंकि वो जो सेक था, जो मैजिकल सेक था, वो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी पहुंचाता है। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. तारो's father politely offered her a cup of the sake. उसी शाम उनकी एक पड़ोसी उनके घर पर आती है। तारो के पिता बहुत ही विनम्रतापूर्वक उनको सेक का एक कप ऑफर करते हैं। The lady drank it greedily and thanked the old man. वो लेडी उस ड्रिंक को पीकर ओल्ड मैन को थैंक यू बोलती है, लेकिन उसके मन में और पीने का लालच रहता है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब तारो उनको जादुई झरने की कहानी बताता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। उनको डिलीशियस ड्रिंक के लिए थैंक्स बोलने के बाद वो बहुत जल्दी से वहाँ से चली जाती है। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात होने तक वो पूरे गांव में वो झरने वाली स्टोरी फैला देती है, सबको वो बात बता देती है। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उसी शाम तारो के घर पर, उस लकड़हारे के घर पर विजिटर्स की एक बहुत लंबी लाइन लग जाती है।
Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. प्रत्येक आदमी उस जादुई झरने की कहानी सुनता है और सेक का एक सिप लेता है. In less than an hour the pitcher was empty. और 1 घंटे के अंदर अंदर वो जो पिचर था, वो बर्तन था जिसमें तारो मैजिकल वाटरफॉल से सेक लाया था, वो खाली हो जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. अगली सुबह तारो पहले वाली सुबह से भी ज़्यादा जल्दी अपने काम स्टार्ट कर देता है. वो और भी जल्दी उठता है जितना वो कल सुबह एक दिन पहले वाली सुबह उठा था. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. वो अपने साथ सबसे बड़ा बर्तन लाता है क्योंकि उसकी इंटेंशन होती है कि वो सबसे पहले वाटरफॉल पर जाएगा, झरने पर जाएगा और उस बड़े बर्तन को सेक से भर लेगा. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors were there. जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है कि उसके सभी पड़ोसी वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. वो अपने साथ बर्तन, जार, बाल्टियाँ, जो भी उन्हें मिला वो सब लेके आए थे जिससे वो उस जादुई सेक को अपने साथ ले जा सके. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तभी एक गांव वाला, एक ग्रामीण घुटनों के बल बैठता है और उस जादुई सेक को अपने मुंह से लगाता है पीने के लिए. He drank again and again and then shouted angrily. वो बार बार पीता है और फिर गुस्से से चिल्लाता है, Water, nothing but water. ये तो पानी है और कुछ भी नहीं लेकिन पानी है. Others also tried but there was no shake, only cold water. बाकी सभी ट्राई करते हैं, जब पी के देखते हैं लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ठंडा पानी मिलता है. We have been tricked, shouted the villagers. सभी गांव वाले चिल्लाते हैं कि हमें उल्लू बनाया गया है, हमें मूर्ख बनाया गया है, हमारे साथ चाल चली गई है. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. तारो कहाँ है? चलो उसे इस झरने में डुबा देते हैं. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. लेकिन तारो इतना बुद्धिमान था कि वो खुद को एक चट्टान के पीछे छिपा लेता है जब वो देखता है कि वहाँ पे जो माहौल था वो कितना बदल गया था और वो किसी को भी नहीं मिलता. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. अपने गुस्से में बड़बड़ाते हुए और निराश होते हुए एक एक करके सारे गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. तारो अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलता है. वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड. वॉज द सेक अ ड्रीम? क्या ये सच है? वो सोचता है क्या जो सेक था जो कल उसने पिया था और अपने फादर के लिए लेकर आया था वो सिर्फ एक सपना था. वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. एक बार फिर वो एक थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथों में लेता है और उसे अपने होठों से लगाता है. इट वॉज द सेम फाइन सेक. वो पहले की तरह ही बहुत अच्छा वाला सेक था. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक. अपने पेरेंट्स की केयर करने वाले बेटे के लिए उस जादुई झरने से सेक निकल रहा था. टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. बाकी सभी को वो ठंडा पानी लग रहा था, लेकिन उस बेटे के लिए जो अपने माँ बाप की इतनी केयर करता था, उनके बारे में रात दिन सोचता था, मैजिक वाटरफॉल ने सेक दिया था. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. तारो और जादुई झरने की कहानी जापान के राजा तक पहुंच गई. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. वो उस यंग वुडकटर को बुलाते हैं, वो राजा उस यंग वुडकटर को अपने पास बुलाते हैं और उसे 20 पीसीस ऑफ गोल्ड, सोने के 20 पीस देते हैं क्योंकि वो इतना अच्छा और दयालु था. देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. फिर वो शहर के सबसे सुंदर झरने का नाम तारो के नाम के ऊपर रख देते हैं. दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. यह किंग ने इसलिए किया था, ये एम्परर ने इसलिए किया था जिससे वो बाकी सभी चिल्ड्रन को इनकरेज कर सके, मोटिवेट कर सके कि वो अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करें.
सो चैप्टर तो पढ़ लिया, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम सॉल्व करते हैं MCQs, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, तारो बहुत कम पैसे कमाता था क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो ज़्यादा काम नहीं करता था। द प्राइस ऑफ द वुड वॉज वेरी लो, लकड़ी का प्राइस बहुत कम था। द विलेजर्स डोंट नीड वुड, विलेजर्स को लकड़ी की नीड नहीं होती थी। एंड द करेक्ट आंसर इज, जो हमने चैप्टर में पढ़ा, इज द प्राइस ऑफ द वुड वॉज वेरी लो। तारो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन वहाँ पे जो लकड़ी का प्राइस था वो इतना कम था कि वो बहुत सारी लकड़ियाँ काटने के बाद और उन्हें सेल करने के बाद भी इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि वो अपने बूढ़े पिता को एक कप सेक प्रोवाइड करा सके। सेकेंड क्वेश्चन, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो एक्स्ट्रा मनी अर्न करने की डिसाइड करता है, क्यों? टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। टू बाय सम सेक फॉर हिज फादर, अपने फादर के लिए सेक लाने के लिए। टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, या उसी हट में जो क्रैक्स पड़े हुए थे उनको रिपेयर करने के लिए। अगर तारो को कंफर्टेबल लाइफ ही जीनी होती तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के कहीं शहर में चला जाता और कोई जॉब कर लेता, जिससे उसे कंफर्टेबल लाइफ मिल जाती। उसके हट में क्रैक्स काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से पड़े हुए थे, लेकिन ये दोनों चीज़ें उसे बॉदर नहीं करी। उसे बॉदर किया अपने फादर का सेक मांगना, अपने फादर की विश कि उन्हें एक कप सेक चाहिए। तो इसलिए तारो ने एक्स्ट्रा मनी कमाने की इसलिए सोची जिससे वो अपने फादर के लिए सेक ला सके। थर्ड क्वेश्चन, द नेबर लेफ्ट तारोस हट इन अ हरी बिकॉज, वो लेडी नेबर जो उनके घर आई थी और जिसने सेक पिया था वो उनके घर से बहुत जल्दी में चली गई थी, क्यों? शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, उसे ड्रिंक पी के बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई। शी वॉन्टेड टू गॉसिप अबाउट द सेक, वो सेक के बारे में पूरे विलेज में गॉसिप करना चाहती थी। थर्ड, शी वॉज अस्टॉनिश्ड टू हियर तारो स्टोरी, तारो की स्टोरी सुनने के बाद वो बहुत हैरान रह गई और इसी हैरानी में वो हट से, उनके घर से चली गई। सो द करेक्ट आंसर इज, शी वॉन्टेड टू गॉसिप अबाउट द सेक, वो सेक के बारे में पूरे विलेज को बताना चाहती थी और हुआ भी यही, उसने सेक के बारे में पूरे विलेज को बता दिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग तारो को सारा गांव, सारे विलेजर्स उस मैजिकल फाउंटेन के पास मिले जहां से तारो एक दिन पहले अपने फादर के लिए सेक लेकर आया था। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस भी। सो गाइस, फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तारो वॉज अ वेरी लेजी एंड डिसओबीडियंट सन, तारो एक बहुत आलसी और डिसओबीडियंट सन था। नहीं, पूरी स्टोरी ही इसी बात पे डिपेंड थी कि तारो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और एक ओबीडियंट सन था, इसलिए ये आंसर तो फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन, तारो फाउंड अ डर्टी रिवर, तारो को एक बहुत गंदी रिवर मिली। नहीं, तारो को तो एक बहुत सुंदर मैजिकल फाउंटेन मिला था जिससे उसके फादर के लिए सेक मिला था, तो ये आंसर भी हमारा फॉल्स हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, तारो लिव्ड इन अ सीमेंटेड हाउस, तारो एक पक्के घर में रहता था। कहाँ भाई, तारो तो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, तभी तो उसके फादर को ठंड लग गई थी, ये आंसर भी फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन, द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन वॉज नेम्ड आफ्टर तारो, जापान का जो एम्परर था उसने तारो के नाम पे एक बहुत ब्यूटीफुल फाउंटेन रखा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे ब्यूटीफुल माउंटेन, नहीं, वो ब्यूटीफुल माउंटेन नहीं थी, वो एक ब्यूटीफुल फाउंटेन था, इसलिए ये आंसर भी हमारा फॉल्स हो जाता है। लास्ट, तारो गॉट रिवॉर्डेड इन द एंड, तारो को अंत में इनाम मिलता है। बिल्कुल, तारो को अंत में इनाम मिलता है और वो इनाम होता है एक जादुई झरने की खोज, जिससे उसके फादर के लिए वो कभी भी सेक ला सकता था और कितना भी सेक ला सकता था। तो फाइनली ये आंसर हमारा ट्रू होता है। सो गाइज, दिस वॉज टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।